اب پروگرام کی بالکل آخری کڑی کے لیے میں صدارتی کلمات کے لیے بصد احترام دعوت سخن دیتا ہوں مولانا اخلاق کریمی صاحب قاسمی کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے نوازیں۔ حضرت مولانا اخلاق کریمی صاحب قاسمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها والى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ محترم حضرات، رات کافی ہو چکی ہے۔ صدارتی خطاب میں وقت کی تحدید نہیں ہوتی، لیکن مجھے آپ کا خیال کرنا ہے، آپ کی رعایت کرنی ہے، اس لیے مختصر وقت میں چند سوالات، چند اصولی باتیں کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ انتہائی آسانی کے ساتھ، آسان انداز میں مفتی یاسر صاحب نے آپ کے سامنے انفاق سے متعلق باتیں رکھیں۔ حافظ عبید صاحب نے سوسائٹی کا تعارف کرایا۔ مولانا ذکی الرحمن صاحب غازی ندوی مدنی نے ایمان اور اسلام کی حقیقت پہ روشنی ڈالی۔ میرے خیال سے یہ باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ سمجھ جانا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کی نیت سے سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ صرف علم کی حد تک ہو تو یہ علم ہمارے لیے مصیبت ہے اور ہلاکت کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم، فرشتوں سے بھی زیادہ علم ابلیس کو دیا تھا۔ معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا، لیکن اللہ کی نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے نہ کرنے کی وجہ سے وہ جنت جہاں ہمیشہ کے لیے ہمیں آرام اور سکون راحت ملے گی، اس جنت سے ان کو نکال دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے ارادہ درگاہ ہوا۔ تو ایمان، جس ایمان کے ہم علمبردار ہیں، یہ ایمان غیر اختیاری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اختیاری چیز، اختیاری بنیادوں پر یہ ایمان ہم لاتے ہیں۔ ہم کہیں پیدا ہوں، کہیں کسی علاقے میں پیدا ہوں، کسی خاندان میں پیدا ہوں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ اختیاری بنیادوں پر ہم ایمان اور اسلام سے اپنے آپ کو وابستہ نہ کر لیں گے۔ ایمان وہ ٹھوس عقیدے کا نام ہے جس عقیدے کے بعد پھر کوئی عقیدہ ہمارے اندر کام نہیں کر سکتا، اور اسی ٹھوس عقیدے کی بنیاد پر جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو ہمارے اندر اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ ابھرتا ہے، اور اطاعت ہم کرتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، وہاں ہمارے نفس کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ نوجوان جس جذبے کے ساتھ اس کام کو کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جن کی مثالیں سورہ کہف میں دی گئی ہے، وزدناہم ھدی، ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اضافہ کیا، ان کے ایمان میں اضافہ کیا۔ یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جن کی بشارت حدیث میں دی گئی ہے کہ کل قیامت کے دن جب 7 لوگوں کو وہ سایہ نصیب ہوگا جس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو یہ وہ نوجوان بھی ہوں گے جو دین کے اوپر مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو ان نوجوانوں کے لیے بشارت ہے۔ ہر آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام نہیں لیتا، جس سے کام لیتا ہے وہ اس بات کی علامت اور اس بات کی دلیل ہے وہ اللہ کے نزدیک قبول ہے، وہ مقبول ہے وہ بندہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام لیتا ہے۔ بے شمار وسائل کے باوجود، بے شمار اسباب کے باوجود
दौलत का अंबार हो, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से काम नहीं लेता जो अल्लाह के नजदीक मकबूल नहीं है। इसलिए जो आमाल हैं, ये आमाल 6 तरह के हैं और इंसान 4 तरह के हैं। दो आमाल वो हैं जो वाजिब के दर्जे में है, जिस अमल की बुनियाद पर उस चीज का होना वाजिब है। अगर हम शिर्क करते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, उसको तस्लीम नहीं करते हैं, तो ये वाजिब है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम नसीब करेगा। उसके बरक्स अगर हमारा ईमान है अल्लाह की ज़ात पर, उसके कानून पर, उसकी शरीयत पर, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फضل से, अपनी रहमत से हमें जन्नत में जगह देगा। जर्रा बराबर भी ईमान है तो उस ईमान की बदौलत हम एक न एक दिन जन्नत में जाएंगे, ये हमारे हक में वाजिब है। ये वो 2 अमल है जो वजूब के दर्जे हैं। दूसरा 2 अमल वो है जो बराबर सराबर का मामला है। एक अमल अगर हम कोई नियत किसी काम के ताल्लुक से कर लेते हैं, किसी नेक काम के ताल्लुक से, तो उस नेक काम का इरादा करने की बुनियाद पर भी हमें अल्लाह अजर देता है। एक अजर देता है सिर्फ नियत की बुनियाद पर। इसी तरीके से अगर हम कोई गलत काम करते हैं, कोई बुरा काम करते हैं, तो उस बुराई की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला हमें 1 गुनाह देता है। सवाब की तरतीब में 2 अमाल हैं। एक वो अमल है कि जब हम उन अमल को करते हैं तो उसूली बुनियादों पर अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी का सवाब 10 गुना तक देता है। लेकिन इन्फाक, जिस इन्फाक के बारे में कहा गया है, उस इन्फाक का सवाब अल्लाह तबारक व तआला 10 गुना नहीं बल्कि 700 गुना से ज्यादा देता है। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि संबुलतिन मिआ। हर बाली के अंदर अल्लाह तबारक व तआला एक दाने से 7 बालियां, और फिर 7 बालियों के हर बाली के अंदर 100 दाने, और फिर 700 गुना तक अल्लाह तबारक व तआला अजर सवाब देता है। तो वो अमल है जिस इन्फाक के ऊपर इस मजलिस के अंदर जोर दिया गया, और उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला 700 गुना तक सवाब देता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हर इंसान ये चाहता है कि हमें दुनिया में भी अच्छाई का मामला हो और आखिरत में भी अच्छाई का मामला, लेकिन इस तरतीब से हम देखते हैं तो 4 कैटेगरी इंसानों की बनती है। एक वो इंसान है जो इस दुनिया के अंदर परेशान है लेकिन आखिरत में उसको आराम मिलेगा। दूसरा वो इंसान है जो इस दुनिया के अंदर आराम से है लेकिन आखिरत में उसको परेशानी का मामला करना पड़ेगा। तीसरा वो इंसान है जो इस दुनिया में ही परेशान है, आखिरत में भी वो परेशान होगा। और चौथा इंसान वो है जो इस दुनिया में भी अच्छी हालत में होगा और आखिरत में भी अच्छी हालत में होगा, जिसकी दुआ हम हर वक्त कहते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। आप हाथ उठा करके कहें कि ये 4 लोगों में से कैसा इंसान हम बनना चाहते हैं। वो माए अपने सीनों पे हाथ रख करके कहें कि हम दुनिया के अंदर कैसी इंसान बन करके रहना चाहते हैं, हमारी जिंदगी कैसी हो, वैसी जिंदगी जो मतलूब है, जो मकसूद है, जिसके बगैर हम चैन नहीं सकते। वो जिंदगी हमें चाहिए कि दुनिया के अंदर भी हमें सुकून हो, इस दुनिया के अंदर भी आराम हो और आखिरत के अंदर भी आराम। ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने मालों को अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हुए, अल्लाह के नबी के कानून पर अमल करते हुए अपने मालों को हक के रास्ते में खर्च किया। ये वो काम है जिस काम को सिर्फ हम आमतौर पे नमाज, रोजे वगैरह को हम इबादत समझते हैं, लेकिन ये इंतहाई इबादत का आला दर्जा है, जिस इबादत की बुनियाद पर सिर्फ आपका तारुफ नहीं होता बल्कि इस्लाम का तारुफ होता है। जिस जगह होते हैं उस जगह आपका ही तारुफ नहीं बल्कि पूरे इस्लाम का तारुफ होता है। आप देखें, एक बात कह करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा तारीख के एतबार से। अंग्रेजों ने इस मुल्क पर 150 साल के करीब हुकूमतें की हैं और आपने 800 साल तक हुकूमतें की हैं, लेकिन अंग्रेजों के ताल्लुक से इस मुल्क में वो नफरत नहीं पाई जाती जो नफरत आपके ताल्लुक से पाई जाती। वजह क्या? उसके असबाब क्या है? उसके असबाब यही है कि हमने आज
500 साल दौर हुकूमत में इमारतें तो बनाई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो खड़ी की हैं, लेकिन खिदमत खल्क का जो काम था, मखलूक खुदा का के साथ जो खिदमत का मामला था, उसको हमने बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा। और जिसकी बुनियाद पर हमारी जो अहमियत बैठनी चाहिए थी मुल्क के बाशिंदों के ऊपर, गैर मुस्लिमों के ऊपर, यहाँ की दीगर बरादरियों के ऊपर, वो नक्श हमारा नहीं बैठ सका। उन लोगों ने जिन्होंने 150 साल हुकूमत की, उन्होंने स्कूल कायम किए, उन्होंने मेडिकल कायम किए, उन्होंने हॉस्पिटल कायम किए, सराय कायम किए, जिसके नतीजे में उनके असरात लोगों तक पहुंचे और उसका फायदा महसूस किया। और वो नफरतें उनके दिलों में नहीं पैदा हुई जो नफरतें हमारे दिल में पैदा हुई। ये वो जज्बा है कि एक इंसान किसी चीज का ख्वाब देखता है, वो ख्वाब एक दिन में पूरा नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर बरसहा बरस तक मेहनतें करनी पड़ती हैं। लेकिन जो ख्वाब देखा जाता है, जिस चीज को ख्वाब की शक्ल में हम देखते हैं, कल वही चीज हकीकत बनकर के हमारे सामने आती है। इन नौजवानों ने ख्वाब देखा और इन नौजवानों की कोशिशें हैं इस गांव को उठाने की, इस गांव को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की, बहैसियत मुसलमान जिंदा रहने की, दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर के उभरने की। उम्मीद है कि अगर आपका ताउन रहा, बिलखुसूस हमारी माओं का, हमारी बेटियों का, उन जवान बहनों का जिन्होंने हजरत आयशा की जिंदगियों को पढ़ा, उम्मुल मसाकीन हजरत ज़ैनब की जिंदगी को पढ़ा, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश की जिंदगी को पढ़ा, हजरत सौदा की जिंदगी को पढ़ा, हजरत फातिमा की जिंदगी को पढ़ा, रुक़ैया उम्मे कुलसूम की जिंदगी को पढ़ा। यकीन जानिए कि उन माओं के जरिए ही से हमेशा इनकलाब पैदा हुआ है और इनकलाब आता रहेगा और यकीनन आएगा। इस जमीन से ये इनकलाब पैदा हुआ। ये आजमगढ़ की सरजमीन पर मेरे ख्याल से, मेरी निगाह में, ये अपनी नौइयत का एक मुनफरिद काम है, एक मिसाली काम है। जिस तरह के काम की इस मिल्लत को जरूरत है, हर वक्त जरूरत है, खास तौर से जो मुल्क के हालात पैदा हुए, इन हालात में जो लोगों के सोचने के ज़ाविये बदल दिए, इंसानों के अंदर एक तहरीक पैदा की, इन नौजवानों ने जो सोचा है, यकीन जानिए कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो काम मकबूल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अत्ताअतु बाद अत्ताअत दलीलुन अलल क़बूल, अलमासियतु बाद अलमासियत दलीलुन अलल ख़ुज़लान, अलमासियतु बाद अत्ताअतु बाद अलमासियत दलीलुन अलल ग़ुफ़रान। ये पैमाना है इंसानों की नेकी का कि अगर आप चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हमारी नेकी कबूल हुई या नहीं कबूल हुई, ये जलसे कबूल हुए या नहीं कबूल हुए, हमारा बैठना उठना कबूल हुआ या नहीं, तो इसके बाद की जो जिंदगी है उसके अंदर अगर तब्दीली नजर आती है तो ये अलामत इस बात की है कि हम जिस मकसद से बैठे थे, जिस वजह से हम इकट्ठा हुए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कबूल कर लिया। और अगर गुनाह के बाद गुनाह करते हुए जा रहे हैं तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह के नज़दीक हम ज़लील और रुस्वा हैं। और अगर गुनाह के बाद तौबा की तौफीक मिली है तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ने हमें कबूल कर लिया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें बैठने को, हमारे उठने को, इस कोशिश को, इस फिक्र को वेलफेयर सोसाइटी के नौजवानों की तबोदौ को कबूल फरमाए। खास तौर से मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूँ अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से कि आप वो किरदार अदा करें जिस किरदार का अदा करने के बाद हमेशा ये मिलकर जिंदा रही है और आज भी आप ही की जरूरत है। इसलिए कि इन्फाक का मामला जितना औरतों में पाया जाता है बिलखुसूस मर्दों में उतना नहीं पाया जाता। देखने में वाक़ियात, मुशाहिदात, शवाहिद मौजूद है कि अगर औरतों के पास पैसे नहीं रहे, औरतों के पास गले नहीं रहे, जेवरात नहीं रहे, तो उन्होंने बिल्लियां तक पेश कर दी और उन्होंने अपने कुर्बानी का इजहार किया। इसलिए आप ही की जरूरत है। मिल्लत को आज फिर भी आपसे उम्मीदें वास्ता है। अल्लाह ताला आपकी तमन्नाओं को, आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह।